before we begin, I have a quick announcement. Basically, Nupul discussed the thing yesterday. So you'll get some assignments starting from 10 p.m. onwards, from today onwards, right? So 10 p.m. ko you'll get a assignment on the similar lines. You'll get 4 or 5 such assignments from now on going forward. Okay. Each assignment may it will also be mentioned what are the topics let's say involved so that you can always refer back those notes also. Okay. Uh, so yeah, for example, let's say just show you. So here is that assignment number 1. It has 2 things. Okay, let me update instructions. So basically JSX and conditional rendering, like all of these are JSX, conditional rendering, and use state. Handling events in React, use state. So basically this are all the concepts that are a part of these assignments. Uh, list and keys. Okay, so yeah, I'll just update it. So similarly, you'll get such assignments that can help you get started. So each assignment will have a zip folder, a zip file basically. Okay, हर assignment में you'll find a zip file. Download it. Okay, so once you download it, unzip it, and basically this will again anyway will be explained. So you'll find something like this. So open this folder, in your VS Code basically. So A1P2 is the folder name that I've created, that got downloaded. So you can just basically open that in VS Code. I'll also do that same thing maybe. So if you do open it, it'll look like this. Okay, and you just have to follow the steps. यहाँ पे जो steps लिखे हैं, follow the same steps basically. Okay, मैंने वो डाउनलोड किया, अनजिप किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आई वेंट इनसाइड दैट फोल्डर. वो फोल्डर के अंदर कुछ इस तरह पब्लिक के साथ ही, जैसे कि एक रिएक्ट टेम्पलेट में होता है. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर. सो उसमें जाने के बाद स्टेप नंबर 4 लिखा है कि डू एन npm इंस्टॉल. सो आई डू दैट npm इंस्टॉल. सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे. उसके बाद आई रन npm run dev. तो when I do this npm run dev, तो localhost 5173 पे I can see something like this, uncomment to view particular component. तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे. आप वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू सॉल्व. मैं बस स्टेप्स बता रहा था हाउ टू गेट स्टार्टेड विद दिस. सो ये क्वेश्चंस है. ओके, एक सैंपल दिया जाएगा आपको. ओके, और सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको करने को बोला जाएगा. ओके, सो कोड में आपको टेम्पलेट में आपको इस तरह का सेम कंपोनेंट मिल जाएगा. जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, आपको वो सिमिलर कंपोनेंट यहाँ भी मिल जाएगा. सो इफ यू सी यहाँ पे यू हैव, लेट्स से डाउनलोडेड दिस. सो ये वाले जिप फोल्डर में, दिस इज यूज स्टेट वाला, सॉरी. तो वी डूइंग दिस राइट. तो ग्रीटिंग 1 हो गया फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट. तो दिस कंप्लीट मिसिंग कोड, सो वी जस्ट हैव टू गो टू दिस कंपोनेंट कॉल्ड वेलकम. ओके, तो देयर इज अ कंपोनेंट कॉल्ड वेलकम.
एंड यहाँ पे जो मिसिंग पीस है आपको कंप्लीट करना है. ओके, yeah, that's what you need to do. And yeah, basically once done, push the code and update that repository link in GitHub. Okay, so again, this is what I just wanted to give a quick overview. Let's go back to what we were discussing yesterday. Okay, anyway, so if you attend IA discussion sessions, they can also help you out in that. So probably it's a good idea that you attend that session today. Okay, so you'll have this is assignment number 1. You'll have 4 or 5 such assignments that will be released today, tomorrow, and day after tomorrow. Okay, so try completing that. The first assignment will be released at 10 o'clock today. Now let's come back to this context API, something that we were discussing yesterday. Okay, all right. तो हमने क्या डिस्कस किया था? Let's open that up. Okay, example 3. So we do npm, ये वाला नहीं. So this is a toggle timer or something. No, not this one. So we did one example, I guess. Where is it? Is it session 7? Yeah, it is session 7. Yes, this one, right? इसको हम लोग replit में कर रहे थे, if you remember, right? All right. So I'll just quickly open that. कल जो कर रहे थे. Is it this one or the other one? No, this was just an example. Yeah, this one. इसका नाम कुछ ढंग का लिखते हैं. Okay. So, what we're like, we started our discussion basically with what is props drilling, right? So let's open that. We kind of started our discussion with this particular diagram, right? कि अगर आपके एप्लीकेशन में बहुत सारे नेस्टेड कंपोनेंट्स है कि एक लेवल पे आपके पेरेंट कंपोनेंट ऐप है जिसके 3 चाइल्ड कंपोनेंट्स है, देन मेन के अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स है, देन वो बॉटम मेन के अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स है, एंड सो ऑन. So इस तरह का if you have and which is the normal case, आपके कंपोनेंट्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे. लेट्स से इसको इन सारों को, ये एक पीढ़ी है, राइट? ये लेवल 1 पे ये सारों को लेट्स से वी कॉल चाइल्ड कंपोनेंट्स, ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट्स, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट्स. ऐसे बहुत सारे लेवल पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं. एंड लेट्स से एक से ज्यादा कंपोनेंट, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में इफ यू रिमेम्बर यू नो लेट्स से आप बहुत सारे फंक्शंस वगैरह लिखते थे, लेट्स ना थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, लेट्स से, और 1000 लाइंस ऑफ कोड है यहाँ पे, लेट्स से. बट कुछ वैल्यूज यहाँ पे आप रखा करते थे, ग्लोबल वेरिएबल्स, जो आप अपने कोड बेस में कहीं पे भी इस्तेमाल कर पाते थे, राइट? जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर वॉर या लेट करके कुछ लिख लेते, तो मैं ये अपने एंटायर कोड बेस में कहीं पे भी यूजर नेम यूज कर पाता, राइट? बिकॉज इट्स ग्लोबली अवेलेबल, ग्लोबल वेरिएबल है, राइट? तो उसी तरह आपके ऐप कंपोनेंट में, आपके एप्लीकेशन में कुछ वैल्यूज होंगे जो आप
बेसिकली एंटायर ऐप स्ट्रक्चर, ये जो एंटायर ऐप स्ट्रक्चर है, इन सारों को एक्सेस देना चाहोगे, राइट? जैसे कि ये कंपोनेंट हो गया या ये कंपोनेंट हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स को कुछ वेरिएबल्स होंगे जो आप एक्सेस देना चाहोगे। एंड पुराना वाला अप्रोच क्या था कि हम लोग ऐप कंपोनेंट में बेसिकली वो रखेंगे। ये कुछ भी वैल्यू, जैसे इज लॉग्ड इन एक वेरिएबल नेम है, जैसे मैंने यूजर नेम एक वेरिएबल नेम लिखा यहाँ पे, वैसे ही एक ग्लोबल वेरिएबल है, कुछ वेरिएबल जो मेरे को एट ए ग्लोबल लेवल रखना है ताकि बहुत सारे कंपोनेंट्स से यूज कर पाए। तो मैं जनरली उसको सबसे बड़ा कंपोनेंट, लाइक पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है, ऐप कंपोनेंट, तो मैं वहां पे रख दूंगा, तो यहाँ भी एक्सेस कर पाऊंगा, यहाँ भी कर पाऊंगा, यहाँ भी कर पाऊंगा, कहीं भी कर पाऊंगा, राइट? एज अ प्रॉप मैं उसको कहीं पे भी पास कर सकता हूँ। ये अप्रोच ठीक है अगर आपके पास एक लेवल तक या दो लेवल तक ठीक रहेगा। बट अब सोचिए अगर आपको इस तरह प्रॉप्स ड्रिल करके यू नो 4 या 10 पीढ़ी नीचे जाना होगा, बहुत सारे लेवल्स नीचे पार करने होंगे, तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लम। कोड ना बहुत मेसी हो जाता है। आपको हमेशा ट्रैक करके रखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक प्रॉप गया कि नहीं, यहाँ से चाइल्ड कंपोनेंट को गया कि नहीं, एंड सो ऑन। एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड प्रॉप्स ड्रिलिंग, इंग्लिश में उसको प्रॉप्स ड्रिलिंग बोलते हैं। बेसिकली आप प्रॉप्स यहाँ पे ड्रिल कर रहे हो, घुसा रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो, एंड ड्रिल करके यहाँ पे फिर वापस, एंड सो ऑन। एंड दैट अप्रोच इज नॉट अ गुड आइडिया। छोटा मोटा एक लेवल तक यू कैन स्टिल पास props, बट इफ यू हैव टू मेनी डीपली नेस्टेड कंपोनेंट्स, तो props ड्रिलिंग फ्लॉप हो जाता है वहां पे। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो प्रॉब्लम ये थी प्रॉप्स ड्रिलिंग। इसका सोल्यूशन है कंटेक्स्ट एपीआई। कंटेक्स्ट एपीआई एक टूल है जो हमको ये प्रॉप्स ड्रिलिंग वाले प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। समहाउ कंटेक्स्ट एपीआई टूल यूज करके हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहीं पे भी एक्सेस कर पाएंगे, किसी भी कंपोनेंट में एक्सेस कर पाएंगे, बिना उसको ड्रिल किए, बिना किसी प्रॉप्स को ड्रिल किए। एंड दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू कंटेक्स्ट एपीआई। ये वाली चीज क्लियर है सबके? रिमेंबर हमने किया था, राइट? परफेक्ट, 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 परफेक्ट। ऑल राइट। तो सॉल्यूशन क्या था? कंटेक्स्ट एपीआई कैसे लिखते हैं? कंटेक्स्ट एपीआई हम ये देख रहे थे, राइट? तो लेट्स कंटिन्यू। कंटेक्स्ट एपी ये प्रॉप्स डीलिंग का था, एंड कंटेक्स्ट एपीआई, हाँ। सो कंटेक्स्ट एपीआई बेसिकली कैसे, लाइक हाउ डू वी सेटअप, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे कंटेक्स्ट एपीआई? अगर याद रखने के लिए सीपीसी करके अपने दिमाग में बिठा लेना। क्रिएट कंटेक्स्ट, प्रोवाइड कंटेक्स्ट, कंज्यूम कंटेक्स्ट, 3 स्टेप होते हैं कंटेक्स्ट एपीआई इस्तेमाल करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए। पहले तो आपको सेटअप करना होगा, उसके बाद उसको इस्तेमाल भी करना होगा, राइट? तो इसके 3 स्टेप्स है। पहले तो क्रिएट, सेकेंड वन इज प्रोवाइड, थर्ड वन इज कंज्यूम। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट वन इज क्रिएट। क्रिएट कैसे करते हैं और ये कंटेक्स्ट एपीआई होता कैसे है? अगर आपको दिमाग में, अपने दिमाग में इसका एक इमेज डालना है कि कंटेक्स्ट एपीआई काम कैसे करता है, तो इस तरह समझ लेना। ये आपका ऐप का स्कोप है, राइट? ऐप कंपोनेंट लेट्स से ये यहाँ रह गया। इसको कुछ, एक सेकंड मैं देखता हूँ, इसको कुछ कर सकते हैं क्या? लेट्स से लेट्स टेक दिस ऐप। लेट इट बी, ज्यादा ओवर इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक है। सो ये ऐप कंपोनेंट, राइट, जहाँ पे, यहाँ पे जो है, राइट, इसके अराउंड बेसिकली आप एक रैपर लगा दोगे, ठीक है? रैप कर दोगे किसी चीज से, एंड एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। कंटेक्स्ट एपीआई आपको ये बॉक्स दे देगा, इसका बॉक्स का नाम ही कंटेक्स्ट रख देना है। जैसे कि एक बॉक्स आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है?
एंड ये बॉक्स, इसको कंटेक्स्ट बुला लेते हैं। ये बॉक्स का नाम ना हमने लेट्स से कंटेक्स्ट रख दिया है, ठीक है। ये बॉक्स का नाम जो है हमने कंटेक्स्ट रख दिया है। एक डब्बा आपको एक्सेस मिल जाता है जिसमें आप कोई भी वैल्यूज रख पाओगे, एंड इसमें जो भी वैल्यू रखोगे आप, आपको एंटायर ऐप में कहीं पे भी एक्सेस कर पाओगे। आपको यहाँ करना है तो यहाँ, इस कंपोनेंट में करना है तो यहाँ, इस कंपोनेंट में करना है तो यहाँ। तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, आपको प्रॉप्स ड्रिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट कंटेक्स्ट एपीआई गिव्स। पहले देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम ना पहले index.jsx के पास गए थे जहां पे अपना ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, पहले वहां जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिफैक्टर भी करना पड़ेगा, वो सब बाद में करेंगे, पहले हम समझ जाएंगे कि कंटेक्स्ट एपीआई काम कैसे कर रहा है। ओके, सेटअप के लिए पहला स्टेप कंटेक्स्ट। ओके, क्रिएट कंटेक्स्ट। उसके लिए कंटेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हमको रिएक्ट की मदद चाहिए होगी। रिएक्ट में जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट वैसे मिलते हैं, उसी तरह एक और फंक्शन मिलता है क्रिएट कंटेक्स्ट करके, उसको इन्वोक करना होगा। रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करके क्रिएट कंटेक्स्ट भी इससे निकाल सकते हो, दोनों वैलिड है। जब आप ये कंटेक्स्ट ऐसे क्रिएट करोगे, ओके, जो ये रिएक्ट वाला ये फंक्शन है ना, इसको इन्वोक करोगे तो आपको कंटेक्स्ट ऐसे मिल जाता है। ओके, बेसिकली ये इंटरनली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। एक चीज होती है प्रोवाइडर कंपोनेंट, जो कि एक रिएक्ट कंपोनेंट है। ओके, सो ये प्रोवाइडर कंपोनेंट जो मिलता है आपको, ये एक रिएक्ट कंपोनेंट है। आपको पता है कि आप रिएक्ट कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से ऐसे रैप कर सकते हो, तो हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पे। ऑथ कॉन्टेक्स्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रोवाइडर नाम का की है, जो कि एक रिएक्ट कंपोनेंट है। तो हम उसको, वो कंपोनेंट को यूटिलाइज करके हम हमारे ऐप कंपोनेंट को ऐसे रैप कर रहे हैं कंप्लीटली। ओके, ये एक स्टेप हो गया। प्रोवाइडिंग अ कंटेक्स्ट में ये स्टेप हो गया कि आप अपने ऐप ऑथ कंटेक्स्ट से प्रोवाइडर कंपोनेंट को यूटिलाइज करके अपने ऐप कंपोनेंट को जो रेंडर हो रहा था ऐसे रैप कर दोगे कंप्लीटली। तो हमने ये वाला स्टेप किया था, राइट। ये जो ग्रीन में है ना, ऐप कंपोनेंट यहाँ पे है, इसको हमने कंप्लीटली ढक दिया, ऑथ कंटेक्स्ट प्रोवाइडर से ऐसे रैप कर दिया। तो अभी ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के पास एक डब्बे का एक्सेस होता है, राइट। ये जो डब्बा है ना, अभी यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो इस डब्बे में कुछ भी रख सकते हो अभी। ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद प्रोवाइडर कंपोनेंट में आप वो डब्बे में, अभी ये डब्बा भी क्रिएट हो गया, वो डब्बे में वैल्यूज भी रख दिए हमने। ऐसा नहीं है कि इज लॉग्ड इन ही होना चाहिए, यहाँ पे आप नंबर रख सकते हो, डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर सकते हो, या फिर एरे पास कर सकते हो। जैसे प्रॉप्स में आप कुछ भी पास कर सकते हो, वैसे यहाँ पे भी कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हो। मैं जो डेटा टाइप पास कर रहा हूँ वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें की है इज लॉग्ड इन और वैल्यू है ट्रू और फॉल्स। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पास किया, ये डब्बे में जो वैल्यू रख दिया, अभी ऐप या ऐप के कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट में कहीं से भी आप ये वैल्यू एक्सेस कर पाओगे। तो हमने एक एग्जाम्पल किया था कि अगर मेरे को बॉटम राइट में यहां से डायरेक्टली वो एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस किया था। बॉटम मेन राइट में मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ अभी, वो कंज्यूम कर रहा हूँ। कंज्यूम करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए होगी। एक तो है एक फंक्शन यूज कंटेक्स्ट जो रिएक्ट हमें देता है, एक और होता है एक डब, वो ना आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उस डब्बे का ये जो कंटेक्स्ट क्रिएट किया गया है इसका नाम क्या है। ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, राइट। तो ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके आपको मेंशन करना होगा कि अच्छा, मेरे को ये कंटेक्स्ट जो यहाँ से यहाँ क्रिएट किया गया है इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ये सिंटैक्स है बेसिकली। सिंटैक्स मतलब
उन्होंने कुछ रूल सेट कर दिए हैं कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए, अगर आपको गाड़ी चलाना है, तो आपको रेड सिग्नल पे रुकना है, ग्रीन सिग्नल पर जाना है। ऐसे बहुत सारे रूल सेट कर रखे हैं, राइट? तो आप फॉलो करोगे। तो सिंटैक्स इज सिमिलर टू दैट। रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप ओपन करोगे रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट डॉट डेव जो है, रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपको यहाँ पे यूज कंटेक्स्ट में मिल जाएगा कि सम कंटेक्स्ट, कोई भी कंटेक्स्ट आपको चाहिए तो उसका नाम आपको पास करना होगा, उसका रेफरेंस आपको पास करना होगा, तब आप ये वैल्यू एक्सेस कर पाओगे। तो आपको ये एग्जैक्टली exactly फॉलो करना पड़ेगा कि अगर वो बोलता है कि यहाँ पे और कंटेक्स्ट पास करना है, तो आपको वो कंटेक्स्ट वैल्यू पास करना है। आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को कि मैं क्यों ग्रीन सिग्नल पर रुक नहीं सकता, मैं क्यों रेड सिग्नल पर जा नहीं सकता। दैट्स नॉट अप टू यू। जब आप उनका लाइब्रेरी यूज करोगे तो उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके। तो यूज कंटेक्स्ट ऑफ ऑथ कंटेक्स्ट, तो मैं ये पास कर रहा हूं। यहाँ पे इज लॉग्ड इन की जगह लेट से मैंने कुछ भी लिख दिया, ओके, इसका नाम फू लिख दिया या बार लिख दिया या कुछ भी लिख दिया। अभी हम लोग एक बार कंसोल लॉग करके चेक कर लेते हैं कि वैल्यू आता क्या है वैसे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रुका देता हूँ, ओके, थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आई ओपन पेन एंड ओपन वेब व्यू। एक और मैं आई जस्ट ओपन कंसोल। आई थिंक ब्राउजर कंसोल ओपन करना होगा। सो वेब व्यू एंड व्हाई एम आई नॉट सेइंग, ठीक है। कंसोल में आई शुड सी दिस। अच्छा, वी weren't एबल टू, लेट्स सी। अभी रीलोड करके चेक करते हैं, शुड वर्क। देयर यू गो। फाइन। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे आप जब वो फुल लॉग्ड इन किए तो आपको वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे पास किया गया था, एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है बेसिकली। यहाँ से हमने पास किया, यहाँ से हम एक्सेस कर पाए उसको डायरेक्टली, राइट? डायरेक्टली फ्रॉम ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर टू ऐप बेसिकली। अगर आप ये यू नो यहाँ पे ओपन करके भी चेक करोगे और आप ना कंपोनेंट्स वाला टैब ओपन कर लेना, तो आपको वो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। सी, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर आपके ऐप कंपोनेंट को भी रैप कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली आप वो वैल्यू पास कर रहे हो इज लॉग्ड इन, और बॉटम मेन राइट में आप एक्सेस कर पाए, आप यूटिलाइज कर पाए इज लॉग्ड इन, बिकॉज वो कंटेक्स्ट वैल्यू अवेलेबल था, तो आपने उसको आप उसको इजीली एक्सेस कर पाए। यूज कंटेक्स्ट वाला हुक यूज किया तो हुक्स में कंटेक्स्ट आ रहा है। सो दिस इज द कंजम्पशन पार्ट, थर्ड पार्ट, जहां पे आप वो वैल्यू एक्सेस कर पाए। ये वैल्यू जो यहाँ पे रखा था इसको आप एक्सेस कर पाए यहाँ पे, दैट्स बेसिकली कंज्यूम कंटेक्स्ट। इतना डिस्कस किया था हमने कल तक बेसिकली। सो इसको, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करके हम लोग जो वैल्यू हमको चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो हमने बस वो वैल्यू निकाल लिया इज लॉग्ड इन वाला। सो इज लॉग्ड इन डॉट टू स्ट्रिंग। तो या यू सी समथिंग ओवर देयर। ऑल राइट, इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन?
I don't know. फंक्शन भी पास कर सकते हैं, हाँ फंक्शन भी पास कर सकते हैं, फिर पास हम वो भी देखेंगे। आई हैव मोर डेटा, हो कैन आई पास? आप पास कर सकते हो। आपको तो पता है कि कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट पास करना है, अगर आपको मल्टीपल डेटा है तो की वैल्यू पेयर की तरह उसको ऐड कर दो, यू नो। क्या? लर्न न्यू थिंग्स, कोडिंग, ट्रैवल। सो यहाँ पे यू आर पासिंग वन मोर वैल्यू, की वैल्यू पेयर। अब जब रिट्रीव करोगे तो उसको भी डीस्ट्रक्चर करके निकाल पाओगे आप, एंड यूटिलाइज करना है तो यूटिलाइज भी कर पाओगे। सो हॉबीज को भी मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करना है, तो मैं बस बोलूँगा कि हॉबीज, एंड शुड बी एबल टू सी दैट। एक सेकेंड, लेट इट रीलोड। हाँ, सो यू कैन सी हम यहाँ पे प्रिंट कर पाए, वी वर एबल टू प्रिंट इट इन बॉटम मेन राइट। सो या मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। डेटा को वेरिएबल में अलग से स्टोर कर दिया, कैन बी पास द वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टिंग। आई डिड नॉट गेट दैट पार्ट, बट ठीक है। थोड़े और विल रीफैक्टर इट, तो इल बी इवन मोर क्लियर। ओके, इसको ना कोड, कंटेक्स्ट एपीआई तो बस इतना ही है। अब थोड़ा सा रीफैक्टर करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाएंगे बेसिकली, ताकि इतना मेसी ना लगे। कुछ तो बेटर सोल्यूशन होगा, यू नो जहाँ पे हम लोग इजीली स्ट्रक्चर कर पाए इसको प्रॉपरली। ठीक, तो कभी भी कोई भी कंटेक्स्ट वैल्यूज जो है ना, ये जो कंटेक्स्ट प्रोवाइडर है, कंटेक्स्ट वैल्यूज जो है, इसको आप इस तरह भी कर सकते हो। बेसिकली एक फंक्शन अगर मैं क्रिएट कर लूँ, ठीक है, बेसिकली एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर रख दिया मैंने उसका नाम, ये फंक्शन का नाम ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर रख दिया, या फिर मैंने इसका नाम रैपर रख दिया लेट्स से। ठीक है, एक रैपर कंपोनेंट बना लिया मैंने, जो कि प्रॉप्स एक्सेप्ट करता है। ओके, एंड ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर कंपोनेंट रिटर्न करता है। एक कंपोनेंट है जो प्रॉप्स एक्सेप्ट करता है, और उप्स, और प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, इस तरह भी लिख सकते हो आप। बेसिकली कंपोनेंट, एक कंपोनेंट भी रिटर्न कर सकता है राइट, तो आई एम रिटर्निंग अनदर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल ऐप, बेसिकली यहाँ पे आप एक्सेस कर पा रहे हो राइट कंपोनेंट्स को, उसी तरह रैपर कंपोनेंट में आप एक कंपोनेंट रिटर्न कर रहे हो, और कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर कंपोनेंट, जो प्रॉपर्टीज भी एक्सेप्ट करता है, चिल्ड्रन प्रॉप्स एक्सेप्ट किए करता है बेसिकली, एंड वही रेंडर करेगा। ओके, फाइन, ठीक है। अभी टेल मी समथिंग, इफ आई राइट यू नो कहीं पे भी रैपर, एंड इन बिटवीन you tell me, if I write something like this, wrapper, and in the middle of this I write app component like this. So now ये app component कहाँ रेंडर होगा? फॉन्ट साइज तो looks okay right? हाँ,
अच्छा ठीक है, मेरा क्वेश्चन मैं बदल देता हूँ। टेल मी, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन क्या होगा यहाँ पे? वैल्यू ऑफ प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन क्या होगा? मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया अभी। ऐप कंपोनेंट होगा, करेक्ट? या ऐप कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं अगर यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर रिमूव कर दूं, ठीक है, और रैपर कंपोनेंट रख दूं यहाँ पे, सेम बात है राइट? ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, आपने प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन अगर आप यहाँ पे एक्सेस करोगे, बेसिकली कुछ इस तरह आया होगा चिल्ड्रन, जो कि एक ऐप कंपोनेंट है। यही हमने पास किया था प्रॉप्स की तरह यहाँ पे, करेक्ट? तो ये जो ऐप हमको यहाँ पे मिला है, हम उसको यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, करेक्ट? सेम ही चीज हुई ना? ऑल राइट। ये इसका नाम रैपर रखना जरूरी नहीं है। अगर मेरे को लगे कि मैं इसका नाम प्रोवाइडर रख दूं, तो आपको कोई दिक्कत है? मुझे ये थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है, तो मैंने उसका नाम चेंज करके ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लिख दिया। डॉट प्रोवाइडर तो ये हमको रिएक्ट से मिला था। ये मैंने कस्टम कंपोनेंट बनाया है। कस्टम मतलब मैंने खुद से बनाया है ये कंपोनेंट, राइट? हैंडमेड, कस्टम मेड कहते हैं ना, वैसे ही मैंने अपने हाथों से बनाया है ये फंक्शन, तो ये कस्टम फंक्शन है। ठीक है, अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑल राइट। तो अभी वो जो वैल्यूज पास कर रहा था, वो तो यहीं पे पास होंगे ना, इज लॉग्ड इन वाले, या कुछ भी मतलब जो भी वैल्यू पास कर रहे हो, वो तो पास यहीं पे हो गया राइट, वैल्यू? ओके फाइन, तो प्रोवाइड कंटेक्स्ट भी यहीं पे हो गया। तो इसको दो स्टेप कर देते हैं, नो, एक ही स्टेप है जिसके दो सब स्टेप्स है बेसिकली। टू ए में आप प्रोवाइड करोगे कंटेक्स्ट, और इसको रैप करना भी जरूरी है राइट, तो वो भी उसी का हिस्सा है। इसको टू बी भी बुला लेते हैं। टू बी वही सेम चीज, लाइक रैप पे करना भूल जाते हैं लोग, तो इसको भी टू में ऐड कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 तो फिर भी सेम ही है। ऑल राइट, ये लेट मी ओपन अ पेन। एवरीथिंग इज वर्किंग, सब चीज ढंग से काम कर रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा साइड में करके, ऑल राइट, ओके, अभी मैं थोड़े से चेंज करूंगा, ओके, थोड़े से चेंजेस करूंगा। इस सारथी में मैंने एक कंटेक्स्ट नाम का भी फोल्डर क्रिएट कर लिया। जैसे कंपोनेंट नाम का फोल्डर है जिसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेक्स्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं कंटेक्स्ट वाले में डालूंगा। ओके, इसमें एक फाइल क्रिएट करता हूं मैं, जिसका नाम मैं रखूंगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। अभी ये कस्टम कंपोनेंट बन चुका है राइट, तो इसको इसके घर में भेजना होगा, इंडेक्स में नहीं रखेंगे हम लोग। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से रिमूव कर दिया। ओके, ठीक है। सो यहाँ से ये सारी चीजें जाएंगी अब, कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट प्रोवाइडर दोनों, और इसको सेपरेटली इसमें मूव कर दिया। तो इन क्रिएट कंटेक्स्ट तो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, तो आई ब्रिंग इट हियर। अभी ये फंक्शन है ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जिसको हमें एक्सपोर्ट करना है, तो ये भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल जा रहा है, एक और ये फंक्शन जा रहा है। मैंने डिफॉल्ट नहीं लिखा, तो ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, राइट? ये दोनों यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं राइट हम लोग इसको। तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है, वो ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो है, कंटेक्स्ट नाम के एक फोल्डर में से ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर नाम का एक फाइल है, वहां से आपको मिलेगा। तो मैंने वो ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर ऐसे पास कर दिया।
फिर भी आपका एप्लीकेशन ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे देखोगे आप तो ये बोल रहा है कि रिक्वेस्टेड मॉड्यूल, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं इसको, बड़े में ओपन कर लेते हैं। राइट, सो आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम नॉट एबल टू expand this, but if you see over here बॉटम मेन राइट कंपोनेंट में अपना कोड फट रहा है कहीं पे। क्या वो बोल रहा है कि ये जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट आपने इंपोर्ट किया है, वैसा कोई फाइल है ही नहीं, वैसा कोई वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे index.jx में। एंड सही तो बोल रहा है, हमने तो उसको रिमूव करके यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। तो अभी पाथ चेंज हो जाएगा, राइट, उसके हिसाब से। तो हम बॉटम मेन राइट में अगर जाके देखें, तो ये जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं वो इंडेक्स में तो है ही नहीं ना। तो इसको पाथ चेंज हमने, बिकॉज हमने उसको सेपरेटली ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में मूव कर दिया है, तो हम लोग वही लिखेंगे कि अच्छा भाई यहाँ नहीं है, तो आप कंटेक्स्ट नाम के एक फोल्डर में जाओगे जहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, वहां से उठा लेना। एंड नाउ एवरीथिंग वर्क्स। ऑलराइट, सो अभी ये थोड़ा क्लीन हो चुका है, दिस इज अ लिटिल मोर क्लीनर नाउ। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम फोकस करते हैं रीडेबिलिटी पे, राइट, क्लीनलीनेस ऑफ योर कोड पे, तो वो पुराना अप्रोच भी काम कर रहा था, बस इसको थोड़ा सा रीफैक्टर करके हमने क्लीन कर दिया। एंड इसका भी रीजन बताता हूं, ये डायग्राम यूज करके बताऊंगा, ठीक है। इसका नाम तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, तो ये रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इसमें सेव कर लोगे। अभी लेट्स से कल के दिन मेरे को एक और वेरिएबल सेपरेटली, एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन, वो ना ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है भी नहीं, कुछ और वेरिएबल भी स्टोर करना है, कुछ और कंटेक्स्ट भी मेंटेन करना है। तो कंटेक्स्ट एपीआई बोलता है कि आप जितने सारे कंटेक्स्ट चाहोगे उतने सारे मेंटेन कर पाओगे। तो एक और रैपर लगा दिया हमने। ओके, सो लेट्स से अभी के लिए आई जस्ट क्लोज दिस, ये सब तो हो चुका है। एक और रैपर ऐसे लगा लिया जहाँ पे एक और डब्बा है, लेट्स से यू नो ये वाला जो है, लेट्स से थीमिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, तो इसका नाम हम लोग ना थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर रख लेते हैं। ओके, एंड लेट्स से तो ऐसे यू कैन स्टोर। एंड नाउ अगर आपके कंपोनेंट में कहीं पे भी इसके इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दे हैव एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो योर एप्लीकेशन कैन हैव मल्टीपल कंटेक्ट्स ऑल्सो, बहुत सारे डब्बे हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे वैल्यू स्टोर कर पाओगे। अभी ये थीम रिलेटेड है, तो वी हैव सेट थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर एंड वी आर एडेड थीम वाला पार्ट हियर। इसको अगर कोड करना हो तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। अभी देखो हमने सारी चीजें रीफैक्टर कर रखी है, राइट। तो यही अप्रोच फॉलो करके यहाँ पे कंटेक्स्ट में एक और फाइल बना लेते हैं हम लोग।
इसका नाम रख देंगे थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। ओके, तो ऑथ कंटेक्स्ट प्रोवाइडर में जो भी है थोड़ा सा पेस्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे चेंजेस कर लूंगा मैं अकॉर्डिंगली। ये थीम रिलेटेड कंटेक्स्ट है तो मैं इसको थीम कंटेक्स्ट बुला लेता हूँ। ओके, एंड इसको थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर बुला लेता हूँ। तो थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर कंपोनेंट, अभी एक नया कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ वो, एंड एक नया रैपर बना रहे हैं हम लोग थीम कंटेक्स्ट वाला प्रोवाइडर। ठीक है, इसके वैल्यूज अलग होंगे ऑब्वियसली। तो मैं बोल दूंगा कि इसके वैल्यूज होंगे, लेट्स से यहाँ पे आप थीम पास करोगे, डार्क या लाइट थीम, जो भी थीम है उसको पास करोगे। ऑलराइट, क्रिएट कंटेक्स्ट, प्रोवाइड कंटेक्स्ट। प्रोवाइड कंटेक्स्ट का एक और हिस्सा है विच इज हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे आपने ऑथ कंटेक्स्ट इंपोर्ट किया, थीम कंटेक्स्ट इंपोर्ट करोगे एंड थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। सो नाउ अभी जैसे ऑथ कंटेक्स्ट प्रोवाइडर रैप्ड है, इसको आप थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर भी ऐड कर पाओगे ऐसे। तो डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखो तो वही हुआ ना, ऑथ कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को भी हमने रैप कर दिया कंप्लीटली, एक और डब्बा क्रिएट कर दिया। सो ऐप कंपोनेंट के सारे कंपोनेंट्स में अभी ये थीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये डब्बे में अगर आप कोई इंफॉर्मेशन रखोगे तो ये कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे। मैं बताता हूँ थर्ड पार्ट, कंजम्पशन पार्ट। तो हमने थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर में डार्क थीम लिख रखा है, तो बॉटम मेन राइट में हम लोग ये एक्सेस कर रहे हैं, राइट, वैल्यू, ऑथ कॉन्टेक्स्ट वाला वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो और ऐड अ पेन इंसर्ट राइट, क्लोज दिस वन, एंड यहाँ पे एक फाइल ही ओपन करना है अपने को। बॉटम मेन लेफ्ट, बॉटम मेन राइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन कर लेते हैं एंड बॉटम में लेफ्ट कंपोनेंट यहाँ पे ओपन कर लूंगा। कोई भी कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ले लेना, बिकॉज यही स्टेप्स फॉलो करेंगे ना हम लोग कंजम्पशन के लिए। तो अगर कुछ कंज्यूम करना है कंटेक्स्ट वाले डब्बे से, तो आपको रिएक्ट से यूज कंटेक्स्ट वाला फंक्शन या यूज कंटेक्स्ट वाला हुक, जो भी नाम बुलाओ उसे, वो उठाना होगा और आपको बताना होगा कि कौन से वाले डब्बे से चाहिए। तो आप जाओगे वो कंटेक्स्ट वाले फोल्डर में, उसमें से आप थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर वाले फाइल में जाओगे, आप बताओगे कि अच्छा मेरे को वो ऑथ कंटेक्स्ट वाला डब्बा नहीं, थीम कंटेक्स्ट वाले डब्बे से वैल्यू चाहिए। तो अभी समझ में आया व्हाई वी नीड टू स्पेसिफिकली पास इट, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल कंटेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली बता देंगे कि अच्छा मेरे को ये वाले डब्बे से वैल्यू चाहिए, तो वो आपको प्रॉपर नो थीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। इससे एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें थीम नाम का एक वैल्यू है, वो हम निकाल लेंगे एंड यहाँ पे बता देंगे, लेट्स से हम बोल देंगे थीम इक्वल टू जो भी वैल्यू आया था थीम। सो अगर हम लोग ये, लेट्स से इफ वी ओपन इट इन अ न्यू टैब, there should be a way. Where is it? Think I need to open web view. हाँ, तो add a pane, insert left, web view, और इसको I think we can, let's just keep it here. हाँ, इसको let's just open here web view. तो you can see theme equal to dark. अरे ये ऐसे क्यों आ रहा है? We may have to fix something. Theme, we are destructuring. अच्छा, this is JavaScript template literal, right? So you have to put curly braces for JavaScript. Now it shows clearly theme dark. जब कभी भी ये वैल्यू चेंज भी होगा, राइट, डार्क की जगह लेट्स से लाइट रहा,
तो यू कैन सी showing light. तो इस तरह you can have multiple contexts also. So we have two contexts now, auth context, theme context provider. एंड ऐप कंपोनेंट को आपने यहाँ पे index.js में दोनों से रैप कर रखा है. ओके, सेम है बेसिकली. ऑथ कंटेक्स्ट जैसे आपने किया, थीम कंटेक्स्ट भी वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे आपको. क्रिएट कंटेक्स्ट, प्रोवाइड कंटेक्स्ट, एंड जब ये थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर कस्टम कंपोनेंट आप भी बना लोगे, हैंडमेड कंपोनेंट, तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, index.js में इंपोर्ट कर लिया, तो वो वाला कंपोनेंट को आपने ऐप कंटेक्स्ट लाइक ऐसे ही रैप कर दिया. एक और आएगा तो वो उसको इन सब से रैप करेगा, और वो थर्ड वाला मल्टीपल हो जाए, एंड सो ऑन इट कंटिन्यूस. बेसिकली कंज्यूम करना है आपको तो सेम थिंग. यूज कंटेक्स्ट रिएक्ट से लोगे, थीम कंटेक्स्ट आप वो पर्टिकुलर थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर वाले फाइल से उठा लोगे, एंड you'll get that same value and you're using it. That's it. Okay. Huh. All right. What next? मैं बोलता हूँ what next. So ये ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कुछ कांस्टेंट वैल्यूज पास कर रहे हैं, राइट? तो अगर if I want not a constant value but basically some value which can be changed, जैसे कि लॉग्ड इन स्टेटस जो है, राइट, ट्रू बता रहा है, फॉल्स भी तो हो सकता है. जब यूजर लॉग आउट करेगा तो वो फॉल्स भी तो हो सकता है. तो ये इंफॉर्मेशन स्टैटिक है प्रेजेंटली. थीम हमने लाइट लिख कर रखा है, थीम डार्क भी तो हो सकता है. तो ये इंफॉर्मेशन अगेन स्टैटिक है, राइट? सो इसको भी वी शुड बी एबल टू हैव अ डायनामिक बिहेवियर हियर. तो क्या मैं ऐसे कर सकते हैं, हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ भी स्टेट मेंटेन कर पाएंगे, बिकॉज ये तो कस्टम कंपोनेंट है, राइट? एक रिएक्ट कंपोनेंट है. तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे डायरेक्टली रैप करने से ये क्यों बेटर ऑप्शन है. बिकॉज यहाँ पे आप वो सब नहीं कर पाते अगर वो कस्टम कंपोनेंट नहीं क्रिएट करते. तो अगर आपने कस्टम कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, तो यूज स्टेट, आप यहाँ पे स्टेट भी मैनेज कर पाओगे. तो ट्रू या फॉल्स से जो भी है, राइट, तो वो मेंटेन कर पाओगे. इज लॉग्ड इन, सेट इज लॉग्ड इन, तो इनिशियली फॉल्स रखा. हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस बना सकते हैं. लॉग इन नाम का एक फंक्शन बना लिया लेट्स से, जो ना लॉग्ड इन वैल्यू को ट्रू कर देगा. लॉग आउट नाम का एक फंक्शन बना लिया, जो कि लॉग्ड इन स्टेटस को फॉल्स कर देगा. अभी ये इज लॉग्ड इन वैल्यू को हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, और एक और चीज कर सकते हैं, ऑल द वैल्यूज टू बी सेंट इन कंटेक्स्ट डब्बा. जितने भी वैल्यूज है सब आप एक ऑब्जेक्ट में रख लो. लेट्स से इज लॉग्ड इन हो गया, तो उसका वैल्यू क्या है ये स्टेट से ले सकते हो इज लॉग्ड इन करके. ऑल राइट. लॉगिन फंक्शन एक बना भेज सकते हो, कि उसका नाम लॉगिन रख दिया, वैल्यू कौन सा है, अच्छा ये वाला फंक्शन, तो वैल्यू में लॉगिन वाला फंक्शन भेज दिया. लॉग आउट वैल्यू में ये लॉग आउट वाला फंक्शन भेज दिया. तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे आप भेज सकते हो एक साथ, एंड कहीं से भी रिट्रीव कर पाओगे. आर यू विथ मी ऑन दिस? अभी कहीं पे भी लॉगिन बटन क्रिएट करने के हैं एंड लॉगिन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है, तो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे वहां पे, राइट? तो ES6 सिंटैक्स के हिसाब से अगर की वैल्यू ना आपको बेसिकली ये वेरिएबल नेम के हिसाब से ही आपको की वैल्यू रखना है.
तो यू डोंट नीड टू राइट 2 टाइम्स, आप ऐसे लिख सकते हो, राइट? दिस इज अलाउड इन ईयर 6 सिंटैक्स, यस, लिख सकते हैं। ऑल राइट, सो यू कैन ऑल्सो पास इट दिस वे, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई डोंट पर्सनली डू नॉट माइंड। या फिर आप ऐसे डायरेक्टली ये वैल्यूज भी लिख सकते हो, आपको एक सेपरेट वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, उसी तरह थीम का भी आप स्टेट मेंटेन कर पाओगे। क्रिएट कंटेक्स्ट जो रिएक्ट देता है, रिएक्ट हमको यूज स्टेट भी देता है, तो अब वो यूज स्टेट यूज करके लेट्स से बाय डिफॉल्ट मैं बोल दूंगा कि लाइट थीम होगा, एंड यहाँ पे थीम वेरिएबल मेंटेन करेंगे हम लोग। एक फंक्शन बना लेंगे जो चेंज करेगा थीम को। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लिख लूंगा कि सेट थीम, अगर इसके इफ एल्स कंडीशन में लिख सकते हैं, इफ थीम इक्वल टू लाइट, अगर थीम लाइट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सेट थीम टू डार्क, एल्स सेट थीम टू लाइट। या तो लाइट होगा या तो डार्क होगा, ये दो के अलावा कुछ हो नहीं सकता, राइट? चेंज थीम, अगर ये फंक्शन इन्वोक होगा, अगर थीम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइट है तो हम लोग चेंज करके डार्क कर देंगे, पर अगर लाइट नहीं है तो इसका मतलब ऑलरेडी डार्क है, तो हम लोग उसको चेंज करके लाइट कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक लिख रखा। या फिर यू कैन इवन सिंप्लीफाई इट, इससे भी इजी सिंटैक्स है, टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर थीम लाइट है तो डार्क कर देना, अगर ये कंडीशन थीम इक्वल टू लाइट ट्रू हो गया तो चेंज द वैल्यू टू डार्क, और यू नो दैट मीन्स दैट इट इज ऑलरेडी डार्क, तो चेंज इट टू लाइट। अगर ये कंडीशन फेल हुआ तो इट बिकम्स लाइट। तो टर्नरी ऑपरेटर यूज करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू की जगह थीम इक्वल टू थीम, चेंज थीम एक फंक की बना लेते हैं, वैल्यू विल बी चेंज थीम, ऐसे भी पास कर सकते हो। एंड एंड अभी हमने देखा कि की वैल्यू नेम सेम है, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। इजंट इट ब्यूटीफुल? अभी देखो, छोटा सा यहाँ पे मैं क्लास नेम्स लिख लेता हूँ। लाइट, लाइट रहेगा तो लेट्स से बैकग्राउंड विल बी वाइट, कलर विल बी डार्क, और सॉरी कलर विल बी ब्लैक, एंड लेट्स चेंज द कलर। ओके, अगर लाइट होगा तो बैकग्राउंड कलर विल बी लेट्स से थोड़ा सा लाइट के अलावा दूसरा चेंज करते हैं, विल चेंज टू सम अदर कलर, लाइट ब्लू और समथिंग, एंड कलर विल बी डार्क। ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। बैकग्राउंड अगर डार्क रहेगा तो विल जस्ट से डार्क ग्रे, और कलर विल पुट एज वाइट स्मोक। ओके, कुछ सी एस एस लिखा, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ऐसे ही ऐड कर दिया लेट्स से, ओके, फॉर द टाइम बीइंग। नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट। ओके, इज लॉग्ड इन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, बॉटम मेन राइट में, बॉटम मेन राइट में करंट वैल्यू बताएगा वेदर द यूजर इज लॉग्ड इन और नॉट, और उसकी जगह यू कैन मेक इट इवन बेटर। इसको आप यू नो यू कुड जस्ट से यूजर लॉग्ड इन स्टेटस,
तो if it user is logged in, if that is true, you just say yes, otherwise you say no. और यहाँ पे आप सवाल कर सकते हो ना, इज यूजर लॉग्ड इन, सो यस और नो में आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ इफ यू सी दिस, अगर आप ये देखोगे वेब व्यू में, यू कैन ओपन इट इन न्यू टैब, ये देखो। सो एक सेकेंड, just keep bottom in right. You see over here, is user logged in, which says no. Okay, and I'll just show you the ये भी कंपोनेंट्स में जाने के बाद ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में हम लोग ये वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं, राइट। ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में करंटली यूजर लॉग्ड इन स्टेटस क्या है, फॉल्स है। ओके, बॉटम मेन राइट कंपोनेंट में जब आप आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटेक्स्ट में हमने बहुत सारे वैल्यूज पास किए। एक तो इज लॉग्ड इन वैल्यू जो कि कंटेक्स्ट से आ रहा है विच इज फॉल्स, और दो फंक्शंस भी है लॉग इन लॉग आउट। तो क्या मैं यहाँ पे वो लॉग इन रिस्ट्रक्चर करके निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं वो लॉग आउट भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं उसको यूटिलाइज कर लूँ यहाँ पे? लेट्स से बिल्कुल। तो लॉग इन लॉग आउट, ठीक है। तो अगर यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो क्या मैं लिख दूं कि लॉगिन कॉल कर लेना, जो कंटेक्ट से हमें मिल रहा है। अगर हम चेक करेंगे ये कंटेक्ट से, तो ये लॉगिन क्या करेगा, लॉग्ड इन स्टेटस को ट्रू करेगा। ये लॉग आउट सिमिलरली लॉग आउट स्टेटस को, है ना, लॉगिन स्टेटस को फॉल्स कर देगा। तो मैंने दोनों फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी है। ठीक है, अभी हमारे पास दो बटन है यहाँ पे बॉटम मेन राइट में। बेसिकली कंटेक्ट से हमें लॉग इन लॉग आउट एंड इज लॉग्ड इन तीनों स्टेटस मिल रहे हैं। तो जब मैं ये वैल्यू चेंज करूंगा तो आप देख पाओगे कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में ये स्टेट वैल्यू जो है लॉगिन स्टेटस वाला, ये ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉटम मेन राइट में हमको ये वैल्यू मिल रहा था, राइट, कंटेक्स्ट से इज लॉग्ड इन अभी ट्रू हो चुका है। कंटेक्स्ट से हमको डायरेक्टली अपडेटेड वैल्यू भी आ रहा है, इसका मतलब। तो ये जैसे ही ट्रू हुआ इज लॉग्ड इन, तो हमने वो यस बताना शुरू कर दिया। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं तो वो लॉग्ड इन स्टेटस फॉल्स हो जाएगा, तो हम वापस फॉल्स बता रहे हैं। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है एंड यू आर एबल टू सी, conditionally we are rendering yes or no, we are able to showcase that. Isn't it amazing? Now you can fully implement login functionality in your React component. इसमें आप टोकन भी स्टोर कर पाओगे, इसमें कुछ भी स्टोर कर पाओगे। एंड कंटेक्स्ट एपीआई इसीलिए बना है। फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारे जगह यूज करना होगा आपके एप्लीकेशन में, कहीं पे भी यूटिलाइजेशन रहेगा, राइट। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसको आप कंटेक्स्ट एपीआई से ऐसे यूज कर सकते हो। थीमिंग रिलेटेड, राइट, कहीं पे भी आपको थीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा कभी ना कभी, तो आप डायरेक्टली यू गेट एक्सेस टू इट। ओके, तो उसी तरह हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी बनाया चेंज थीम करके, इसको भी एक बार यूज करके देख लेते हैं, राइट। बॉटम मेन राइट में हमने, बॉटम मेन लेफ्ट में हमने वो थीम निकाला था, राइट। तो यहाँ पे बॉटम मेन लेफ्ट में जाते हैं ये वाले में, तो आप देख सकते हो कंटेक्ट से हमको दो वैल्यूज मिल रहे हैं। एक तो थीम हो गया जो कि लाइट थीम है, और एक है चेंज थीम वाला फंक्शन। तो हम लोग चेंज थीम वाला फंक्शन भी यहाँ से रिट्रीव कर पाएंगे। यस, चेंज थीम वाला फंक्शन भी रिट्रीव कर पाएंगे। यस, तो यहाँ पे लेट्स से एक h1 बना दिया।
ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ऑल राइट, तो बॉटम मेन लेफ्ट में अभी थीम ऐसे दिख रहा है, तो इसको कर्ली ब्रेस में रख दोगे तो आपको वेरिएबल लाइट या डार्क दिख जाएगा। बॉटम मेन लेफ्ट में है हम लोग, हमको ये थीम वैल्यू कंटेक्स्ट से मिल रहा है। कंटेक्स्ट में हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर में कि करंट थीम इज लाइट, जो कि हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। हम ये बॉटम मेन लेफ्ट में वो वैल्यू कंज्यूम कर रहे हैं। हम एक और फंक्शन भी कंज्यूम कर रहे हैं जिसका नाम है चेंज थीम। ओके, ठीक है। जो ये फंक्शन है चेंज थीम, ये भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। ये यहाँ से आ रहा था। ये क्या करता है ये फंक्शन? ये बेसिकली थीम को चेंज करता है। अगर लाइट है तो उसको डार्क कर देगा, डार्क है तो लाइट कर देगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने एक बटन ऐड कर दिया और इसका नाम लिख दिया चेंज थीम। ठीक है, जब ये क्लिक करेंगे बटन, तो मैं बोल दूंगा कि चेंज थीम वाले फंक्शन को कॉल कर लेना। ठीक है, तो नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो थीम्स, हमको लाइट दिखाई दे रहा है। जब हम ये क्लिक करेंगे तो थीम क्या हो गया? डार्क हो गया। फिर क्लिक करेंगे तो लाइट हो गया, डार्क हो गया। तो थीम वैल्यू इज गेटिंग अपडेटेड, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्लास नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं ये क्लास नेम भी कंडीशनली लिखूंगा कि यू नो इफ थीम इक्वल टू लाइट, क्लास नेम लाइट रहेगा वरना डार्क होगा। अगर थीम लाइट है तो क्लास नेम भी लाइट होगा। अगर थीम मतलब लाइट नहीं है तो इसका मतलब डार्क है, तो क्लास नेम डार्क होगा। ओके, इजंट इट इंटरेस्टिंग? कलर मैंने यहाँ दिया था एक्चुअली ऐप डॉट सी एस एस में। वो बटन को अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर बटन को भी अप्लाई करना है तो आप बटन लाइट बटन डार्क करके भी ऐड कर सकते हो, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक और बटन लाइट बटन उप्स बीटीएन हाइफन डार्क करके ऐड कर दूंगा। तो वो स्पेसिफिकली अगर बटन को भी लगाना है तो लगा सकते हैं। बेसिकली क्लास नेम यही सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, बट इतना है कि here you will just say if theme equal to light, class name would be button light, otherwise it will be btn hyphen dark. तो हाँ, there you go. सो जहाँ कहीं भी आपको ये थीमिंग अप्लाई करनी है, वहाँ वहाँ आप थीम कंज्यूम करोगे और अपडेट करोगे, राइट। या फिर ऐप में करके चेक कर लेना ओवरऑल हो रहा है क्या। सो या दैट्स व्हाट context API is all about. It is
बेसिकली गिविंग यू अ सॉल्यूशन टू प्रॉप्स ड्रिलिंग। कंटेक्स्ट एपीआई बेसिकली बोलता है कि अगर आपके पास कोई ग्लोबल वेरिएबल्स है जो बहुत सारे जगह यूटिलाइज हो रहे हैं कंपोनेंट्स में, और आप उसको ऐप कंपोनेंट में रख के प्रॉप्स की तरह ड्रिल नहीं करना चाहते, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, कंटेक्स्ट एपीआई, जिसमें मैं एक बॉक्स दे दूंगा। आप वो बॉक्स में वैल्यू रख देना, जो भी वैल्यू रखना है, एंड ये वैल्यू मैं कंप्लीट एप्लीकेशन को एक्सेस दे दूंगा, ताकि एप्लीकेशन का कोई भी कंपोनेंट कहीं से भी एक्सेस कर पाए। कंटेक्स्ट एपीआई ये भी बोलता है कि अगर आपके पास मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, जैसे थीम कंटेक्स्ट एक हो गया, ऑथेंटिकेशन कंटेक्स्ट हो गया, कल के दिन लैंग्वेज कंटेक्स्ट हो गया, जहाँ पे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए भी एक मेंटेन करना चाहोगे, तो इट सेज के यू कैन डू दैट। एक और कंटेक्स्ट ऐड कर लेना, एंड आप जितने भी कंटेक्स्ट ऐड करना चाहो उतने ऐड कर सकते हो, मल्टीपल कंटेक्स्ट, एंड यूटिलाइज कर पाओगे। So that's what context API is. Practical applications, basically, you can use this to maintain some of the global variables. Like we have done one, authentication related information store कर सकते हो, theming related information store कर सकते हो। अगर आपके वेबसाइट में लेट्स से कोई लैंग्वेज भी मेंटेन करना चाहते हो, यू नो फॉर एग्जांपल, जैसे करंटली ये वेबसाइट इंग्लिश में है, बट ये आपको एक्सेस देता है कि आप इसको चेंज करके डिफरेंट लैंग्वेज लाइक चाइनीज में भी कर लिया हमने। ये एक एक्चुअली चाइनीज लाइब्रेरी है, सो यू कैन सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस। या फिर थीमिंग रिलेटेड, सो लेट्स से ये वेबसाइट है, अभी डार्क थीम अप्लाइड है, आप अगर लाइट करना चाहोगे तो ये इंफॉर्मेशन के यूजर डार्क थीम चाहता है कि लाइट थीम चाहता है, ऐसे इंफॉर्मेशन जो ज्यादातर चेंज नहीं होते। जैसे कि यूजर एक बार लैंग्वेज चूज करेगा, ज्यादातर वो उसके बाद चेंज नहीं करेगा। एक बार यूजर ने थीम चेंज सेलेक्ट कर लिया कि डार्क थीम या लाइट थीम, तो वो उसी पे स्टिक करके रखेगा, राइट, ही वुडंट चेंज इट अ लॉट। So things like this, which can be, maintained at a global level and also which doesn't change that often, you kind of use context API and utilize it in your React application. I hope it was helpful. We'll continue our session. एक 5 minutes का break ले लेते हैं, 9:15 को we'll continue our session. Okay. Meanwhile, if anybody is interested, they can check out the code also. I'll give you the link. All right. I'll send the link. You can check out. 9:15 ko we'll meet again. Okay. Any questions that you have? I want you to first go through the code. Uske baad we'll talk. Okay. Because most of it gets resolved if you look through code. So 9:15 ko I'll answer any queries if you have. All right. Questions. Let's see. If it changes often, then what we have to do? Then you can stick to using use state maybe. Can we write theming logic in auth context rather than creating new context? Um, instead of like one of the question is के like सेपरेटली थीम context मैं क्यों क्रिएट करूं, ये भी यहाँ पे मेंटेन करके यहाँ से पास कर सकता हूँ ना वैल्यू करके। ओके, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, माय पॉइंट इज के you can but you shouldn't, okay, technically you can, but separation of concern एक टॉपिक होती है बेसिकली, राइट, कि बेसिक इस तरह समझ लेना कि आप ना अपने पड़ोस के घर में भी जाकर सो सकते हो, उनके लाइक हॉल में, बट आइडियली यू शुडंट, इट्स देयर हाउस। तो उसी तरह बाउंड्रीज को यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हुए सिमिलर काइंड ऑफ डेटा जब हम मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग कंटेक्स्ट बनाना बेटर ऑप्शन रहेगा, रादर देन यू नो
mixing everything in one. So it's not a good idea, right? So you can create, I hope you're getting my point. There's something that whether we can or cannot, we can, but it's just that we shouldn't, right? So थीम एक अलग एंटिटी है, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक अलग एंटिटी है, तो उसके लिए एक अलग कंटेक्स्ट मेंटेन करके नो मैनेज करना इज अ बेटर ऑप्शन। इस तरह आपका कोड क्लीन रहेगा, राइट? दैट वे दिस डज नॉट इंटरप्ट दिस डज नॉट इंटरप्ट दिस। मेरे को एग्जैक्टली exactly पता रहेगा कि ऑथेंटिकेशन रिलेटेड कंटेक्स्ट कहाँ पे है, थीमिंग रिलेटेड कंटेक्स्ट कहाँ पे है, एंड सो ऑन। Okay, all right. Any other question? Light mode, theme mode, CSS. You have to write separate CSS. That's a normal, that's common thing. Do we need to use ternary operator in class name? If you have any other logic, you can use it. Also, let us know whatever that logic is. सो कैन वी का आंसर ये है कि अगर आपको काम कर रहा है, इफ समथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू, कि आप कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्लास नेम से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, तो प्लीज डू इट एंड सी व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, एंड आल्सो लेट अस नो। ओके, एक और क्वेश्चन है, कैन वी यूज द वैल्यू ऑफ ऑथ कंटेक्स्ट इन थीम कंटेक्स्ट इफ देयर इज अ नीड, और बिकॉज थीम कंटेक्स्ट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ ऑथ कंटेक्स्ट, आई मीन बोथ कंटेक्स्ट आर वायरलिंग पैरेलली, और व्हाट्स द स्कोप लाइक? ओके, तो इनका क्वेश्चन है कि अगर मेरे को बेसिकली ये लॉग्ड इन स्टेटस है, ये थीम कंटेक्स है, तो दीज आर इंडिपेंडेंट वैल्यूज, तो फर्क नहीं पड़ता। अगर डिपेंडेंसी हो कि मेरे को ये वैल्यू यहाँ यूज करना है, या फिर ये वैल्यू यहाँ यूज करना है, तो उस टाइम पे हाउ डू वी मैनेज दिस? तो स्कोपिंग भी इसी प्रकार से काम करेगा कि आप यहाँ से यहाँ पास कर पाओगे, राइट, वैल्यू इजीली। इधर से इधर करना मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ से यहाँ पास कर पाओगे इजीली। तो जो डिपेंडेंट है, अगर ये इसको वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो इसको नीचे रखना, इसको ऊपर रखना। जो इंडिपेंडेंट है उसको ऊपर रखना, जो डिपेंडेंट है उसको नीचे रखना। दैट मीन्स दैट यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला बंदा यहाँ रहेगा, डिपेंडेंट उसके नीचे रहेगा। वैल्यू पासिंग के लिए आसानी रहेगी, वैसे कर सकते हैं। What is the use of use memo and callback that is added in context API notes? Where is it added? Acha, there's some information that you can ignore it. It's not required. आप इग्नोर कर सकते हो। वो एक लाइन में लिखा है बस, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है वो, but you can ignore it for the time being, not required. Okay, I hope I have answered all the questions. Let's move to the next topic, which is React routing and stuff. Okay, all right. So ये सबसे पहले हम लोग एक ना छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं, जितना हमको पता है उसके हिसाब से ही बना लेंगे। ओके, अभी कंटेक्स्ट एपीआई में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेट्स मूव ऑन। विल क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ओके, आई कॉल इट राउटिंग प्रोजेक्ट। ओके, इसमें आप भी मेरे साथ काम करोगे। ओके, सो बी केयरफुल, मैं आपको ये दूंगा, एंड यू विल आल्सो वर्क। VS कोड में आई कैन वर्क, इट्स जस्ट दैट मेरे को आपसे करवाना है, इसीलिए आई एम डूइंग इट ओवर हियर सो दैट इट्स इजी टू शेयर, एंड देन आप यहाँ से कर पाओगे। आपको अगर VS कोड में कंफर्टेबल लगता है तो प्लीज फील फ्री टू यूज। मैं भी यूज करूंगा, मैं जनरली VS कोड ही यूज करता हूँ, बट अभी नो आई वांट टू वर्क इन अ कोलैबोरेटिव फैशन, इसीलिए। ठीक है, ऑल राइट। सो या लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक नया सा प्रोजेक्ट बना रखा है मैंने।
Okay, I'll use this one. So app.jsx and add pane, insert right, and here web view. Okay, let's run this and हमको ये दिखेगा तो we'll know our application has started. हाँ ठीक है, now we know that our application has started. Okay, fine. एक कंपोनेंट बना लेता हूँ. ओके, अबाउट करके, जो कि अभी के लिए अबाउट पेज दिखाई देगा जिससे. ओके, एक और बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट पेज करके, इसमें कॉन्टैक्ट पेज दिखाई देगा. जैसे एक वेबसाइट में नहीं होते मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट राउट्स, राइट? कोर्सेज का एक पेज हो गया, इवेंट्स का एक पेज हो गया, फीस का एक पेज हो गया, ऐसे. सो वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग सम राउट्स. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. ये क्लोज कर लें. लेट्स डू दैट. तो हमने एक अबाउट और कॉन्टैक्ट नाम का एक पेज बना रखा है. ओके, ठीक है. सो यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे एक स्टेट मेंटेन करूंगा. ओके, तो इसके लिए आई नीड टू इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट. ऑल राइट, सो यूज स्टेट एंड ऐसे एम्प्टी रख देते हैं. पेज नेम, सेट पेज नेम. ओके, लेट्स से पेज नेम हमने रख दिया अबाउट. पेज नेम कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए इट्स अबाउट. इट कैन बी लेट्स से कॉन्टैक्ट, इट कैन बी अबाउट, ऑलराइट, इट कैन बी एनीथिंग. यहाँ पे वी आर रिटर्निंग एम्प्टी. ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पे एक हेलो दिखा देता, वी कैन सी दैट ऐप और समथिंग. ओके, सो लेट्स से एक पी टैग बना लेते हैं जिसमें हमारे पास स्नैप बार है, कुछ भी है, लिख लिया है मैं स्नैप बार करके, एंड वो स्नैप बार इज बीइंग डिस्प्लेड. ओके, तो यहाँ पे आई से अगर पेज नेम, if the page name, if it is equal to about, then about पेज दिखा देना, वरना नल. सिमिलरली अगर पेज नेम अबाउट नहीं कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट पेज दिखा देना, वरना कुछ मत दिखाना. तो बेसिकली अभी अबाउट है पेज नेम तो वो बता रहा है, अगर कॉन्टैक्ट होता तो कॉन्टैक्ट पेज दिखता, विच इज द केस. करेक्ट, अभी कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट पेज दिख रहा है. सिमिलरली यू नो अभी मैं आपको एक टास्क दूंगा यहाँ पे. क्रिएट द फॉलोइंग पेजेस. ओके, एक होगा पेज नाम आपका जो आपको क्रिएट करना है, अबाउट कॉन्टैक्ट, लेट्स से लॉगिन करके एक पेज क्रिएट करना होगा आपको. पेजेस, उप्स, कंपोनेंट. तो देयर बी, यहाँ से ले लेते हैं ना, कोर्सेस, इवेंट्स, फीस, लर्न. ओके, चार पेज के नेम हो गए, कुछ भी यू कैन पुट. ऑल राइट,
सो मैं भी वो लिख लेता हूँ, अबाउट कॉन्टैक्ट, होम पेज, या फिर कोर्सेस, फीस, लर्न पेज। ओके, ये बनाना है आपको, ये 3 पेज बनाने हैं। एंड सिमिलरली हियर, अगर कोर्सेस है तो आपको कोर्सेस पेज दिखाना होगा, या फिर लर्न पेज है तो आपको लर्न दिखाना होगा, फी पेज है तो आपको फी पेज दिखाना होगा। यू हैव टू क्रिएट दोज कंपोनेंट्स एंड डिस्प्ले बेस्ड ऑन द स्टेट। ओके, ऑल राइट, कैन यू गाइस क्रिएट दिस 3 पेजेस? ओके, यही आपका टास्क है, फर्स्ट टास्क। Create these 3 pages and write the same condition for those pages. Okay, so you got 3 minutes for this, and I'll give you this. You can start, okay, fork it and start working on it. All right, so by the way, we just created, there is a conditional rendering here बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अगर पेज नेम करके एक स्टेट है, वो कंडीशन के हिसाब से हम लोग अगर बोल रहे हैं कि एम्प्टी है ये, तो होम बताएंगे, अबाउट है तो अबाउट पेज बताएंगे, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट पेज, कोर्सेस कोर्सेस, लर्न लर्न पेज बताएंगे, फी ना है तो फी वाला पेज, फी कंपोनेंट बता देंगे, पेज कंपोनेंट। ईच ऑफ दिस इज अ सेपरेट कंपोनेंट नाउ। तो सारे को इंपोर्ट कर लिया और हम यहाँ पे कंडीशनली रेंडर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बटन बना लिया कि पेज नंबर, पेज नेम अगर ये है तो अबाउट है तो अबाउट बताना, कॉन्टैक्ट है तो यू नो बटन क्लिक करने पे ये पेज नेम को चेंज करता रहेगा। इतना सा किया है और कुछ नहीं। राइट, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ऑल राइट, यस। हाँ, जनरली वेबसाइट्स जो होते हैं ना, वो यूआरएल पे काम करते हैं। जैसे कि एक यूजर यहाँ पे आया, ये वेबसाइट पे, व्हेन ही विजिट्स, ये यूआरएल, like when you click on something, the URL changes. When you click on this URL changes. When you click on this URL changes के स्लैश p हो गया, स्लैश सक्सेस स्टोरी, स्लैश हायर फ्रॉम अस, समथिंग समथिंग। So based on a URL, this changes, करेक्ट? बटन चेंज करने से या पेज स्टेट से यूआरएल चेंज नहीं होता। यूआरएल यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे भी, तो उसके हिसाब से आपके पेजेस चेंज नहीं हो रहे। तो हमें पता लगा कि हमें कुछ इस तरह का बिहेवियर चाहिए कि जब ये यूआरएल चेंज हो या यूआरएल कभी भी अपडेट हो, देन हम ये पेज, पर्टिकुलर पेज हमें रेंडर करना है, जो कि रिएक्ट में करंटली है नहीं। राइट, तो एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डॉम करके, जो रिएक्ट का हिस्सा नहीं है, बट यू कैन यूज दिस लाइब्रेरी अलोंग विथ रिएक्ट। ओके, तो इसको मैं एक सेकेंड के लिए VS कोड में मूव करूंगा, बिकॉज यू नो आई वुड नीड टू शो हाउ टू इंस्टॉल दोज एज वेल। तो फॉर दैट रीजन आई डू दैट। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड लेट मी ओपन VS कोड। तो लेट्स कम बैक टू दिस।
ओके, npm create wheat at latest example1 hyphen template react example1. I'll go there, do an npm install which will install all the packages, कोर पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, बट मेरे को कुछ एडिशनल पैकेजेस भी इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो अगर आप नोट्स ओपन करोगे आज का, तो यूल सी दिस रिएक्ट राउटर डॉम, ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल करना होगा हमको। ओके, तो बस ये स्टेप्स जो भी दिखेंगे हम लोग इसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में बताया गया है कि अगर रिएक्ट राउटर डॉम यूज करना है तो आपको बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंस्टॉल करना होगा। ओके, तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसको। उप्स, थैंक, तो लेट मी कॉपी दिस कमांड एंड यहाँ पे ऐड कर दूंगा npm install react router DOM। ओके, यहाँ आने के बाद main.jsx ओपन कर लेना, src main.jsx। ओके, एंड यहाँ पे इन ऑर्डर टू यूज ये वाला लाइब्रेरी जो रिएक्ट राउटर डॉम है ना, इसको यूज करने के लिए आपको ब्राउजर राउटर नाम का एक टूल मिलेगा जो रिएक्ट राउटर डॉम देता है, वो इंस्टॉल करना, वो बेसिकली उससे रैप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा कुछ करना होगा, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे आई डोंट नीड दिस एनीवे, सो इसको रिमूव कर लेता हूँ। एक सेक आई ऑल्सो यू नो इसको स्टार्ट भी कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेलकम, अच्छा आई ऑलरेडी हैव दिस थिंग ओपन, अगेन आई हैव ओपनड इट देयर। ठीक है, आई विल जस्ट क्लोज दिस। चलो, आई विल कीप दिस हियर, ओपन दिस टू द लेफ्ट, दिस वन ऑन द राइट, एंड npm run dev तो मैंने शुरू ही कर रखा है, so I'll do localhost 5173 here। okay, so yeah, 5173 and this is how it is। uh, उसको बस I would be needing to, I don't want to do this again, तो मैं वो zip folder है, I'll just open that and इसमें से src folder में से वो पेजेस वाला पार्ट ले लेता हूँ, वो बस वो एक पेजेस ही चाहिए और कुछ नहीं उसमें से। ओके, तो I'll add that here। तो 5 कंपोनेंट जो थे वो यहाँ पे ऐड कर लिए, बस और कुछ नहीं किया। नाउ ये डॉक्यूमेंटेशन, ये नोट्स यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हियर दिस इज द सेकेंड स्टेप। ओके, तो क्या करना है, फर्स्ट इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम है लाइब्रेरी का नाम, बाय द वे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आई मीन इंस्टॉल करने के बाद आपको मालूम करना है कि अगर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है, तो डिपेंडेंसीज में जाके चेक कर लेना है एक बार के ये वाला लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। रिएक्ट डॉम नहीं, रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी का नाम। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आपको एक कंपोनेंट है ब्राउजर राउटर नाम का एक कंपोनेंट जो आपको वहां से इंपोर्ट करना है। ये बस स्टेप्स है, वो जैसे बोलेगा उसको वैसे फॉलो करना है। बेसिकली एक्सटर्नल लाइब्रेरी है ना, तो उसको बस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है, तो आपको वो बस फॉलो करने हैं। तो अगर आप ये ऐसे ब्राउजर राउटर से अपने ऐप कंपोनेंट को रैप कर दोगे जैसे कंटेक्स्ट प्रोवाइडर में करते थे, राइट, तो ये ब्राउजर राउटर भी एक कंटेक्स्ट प्रोवाइडर ही है, बस आपने क्रिएट नहीं किया। जैसे आपने कस्टम
प्रोवाइडर अपने हाथों से क्रिएट किया था, राइट। यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम नाम की ये जो लाइब्रेरी है, इन लोगों ने क्रिएट किया कुछ कस्टम प्रोवाइडर कंपोनेंट, आपको दे दिया कि इससे अपने ऐप कंपोनेंट को रैप कर लेना। फायदा क्या है हम देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक। लाइब्रेरी का मतलब बेसिकली किसी और ने कोड किया, एक टूल बनाया, आपको दे दिया कि आप यूटिलाइज कर लो बेसिकली। अगर सिंपल से समझना है तो लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पे बुक्स होते हैं जो आपके नहीं होते बट आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो वो बुक्स को, राइट। नॉर्मल लाइब्रेरी क्या होता है, आप लाइब्रेरी जाते हो, बुक्स लेते हो जो आपके नहीं है बट आप स्टिल यूटिलाइज कर सकते हो। तो कोड में भी लाइब्रेरी कुछ उसी तरह का है, कोड किसी और का है बट आप स्टिल यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। तो ब्राउजर राउटर मैंने वहां से उठा लिया रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से, एंड आई हैव रैप्ड इट। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हाउ ब्राउजर राउटर भी कंटेक्स्ट प्रोवाइडर की तरह आपके इंटायर एप्लीकेशन को रैप कर लेता है, और ये भी आपको बहुत सारी चीजों का एक्सेस दे देता है। इसने अपने डब्बे में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारे टूल्स ऐड कर रखे हैं। ओके, तो ये वाला है वो टूल बेसिकली, राउट लिंक ऐसे करके बहुत सारे टूल्स इसने दे दे रखे हैं जो हम यूटिलाइज करेंगे अभी। ओके, फाइन। तो चलो, हमने ये पेजेस बना रखे हैं, राइट। ये स्टेप नंबर 3 वाले पेजेस, ये पेजेस तो बना रखे हैं, राइट। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, यूजर्स, ये वाले पेजेस बना रखे हैं, ऑल राइट। तो अभी ऐप कंपोनेंट में आने के बाद आपको थोड़े से चेंजेस करने होंगे, वो हम कर लेंगे अभी। इसमें ऐप डॉट जेएसएक्स अगर जो हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किया है, इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, एंड लेट्स सी। तो सी एस एस अप्लाइड है, excuse me, ऑलराइट। जो कोड वहां पे था, इट्स हियर नाउ। ओके, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास पेजेस हैं, यहाँ पे एक स्टेट बना रखा है हमने, वो स्टेट के हिसाब से पेज चेंज हो रहा है, एक बटन यहाँ पे लगा रखा है जिसकी वजह से अपना पेज चेंज हो रहा है। बट यूआरएल अगर आप देखोगे तो कोई चेंज नहीं है यूआरएल में। जब मैं अबाउट में जाऊंगा तो स्लैश अबाउट या स्लैश कॉन्टैक्ट कुछ नहीं हो रहा है। ओके, फाइन। तो मैं रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से कुछ चीजें निकाल लूंगा। ओके, जैसे कि मैंने बोला ना कि ये बहुत सारी चीजें आपको एक्सेस दे देता है। तो इफ यू सी ओवर हियर, ये राउट्स एंड राउट नाम के दो कंपोनेंट्स को एक्सेस दे देता है। उसका क्या फायदा है हम देखेंगे अभी। सो ये राउट्स एंड राउट कंपोनेंट मैंने रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से उठा लिए। अभी हम लोग ये वाला इम्प्लीमेंटेशन नहीं यूज करेंगे, तो इसको निकाल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। सिंपल से मैंने एक राउट्स नाम का रैपर क्रिएट, उसमें राउट नाम का कंपोनेंट लिख दिया ऐसे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर पाथ स्लैश है तो भाई साहब मेरे को ये वाला कंपोनेंट है होम करके उसको दिखाना है, वो रेंडर करना है यूआई पे। इसको क्लोज करेंगे। ओके, दो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ऑब्जर्व दिस, वन इज पाथ, द अदर वन इज एलिमेंट। ये जो राउट्स कंपोनेंट है ये कंप्लीटली एक ही बार आता है, जो बेसिकली राउट कंपोनेंट को रैप करने के लिए यूज होता है, ये वाले कंपोनेंट को रैप करने के लिए यूज होता है। तो इसका कुछ नहीं है, ये बस एक रैपर है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
मेन अपना राउट कंपोनेंट है हीरो। ये क्या करता है, ये बेसिकली पाथ ले लेता है कि पाथ इज बेसिकली दिस स्लैश हायर में, ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, स्लैश कोर्सेस स्लैश इवेंट्स एंड स्लैश फीस, ये जो एंड पॉइंट है ना। सो अगर वो स्लैश है तो क्या एलिमेंट यूआई पे दिखना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो स्लैश है यूआरएल में तो होम एलिमेंट और होम कंपोनेंट और होम पेज दिखना चाहिए। अगर स्लैश अबाउट है तो मैं बोल रहा हूँ कि अबाउट पेज दिखना चाहिए। राउट की मदद से, ये राउट कंपोनेंट जो रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी देता है उसकी मदद से मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो अबाउट है तो अबाउट दिखना चाहिए। सिमिलरली अगर वो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट दिखना चाहिए। कोर्सेस है तो कोर्सेस दिखना चाहिए। अगर वो लर्न है तो लर्न वाला कंपोनेंट या लर्न वाला पेज जो भी बुलाना चाहिए वो दिखना चाहिए। अगर वो स्लैश फीस है तो फीस वाला पेज दिखना चाहिए। ठीक। तो मैंने यहाँ पे अपने राउट्स डिफाइन कर दिया है कि अगर स्लैश है तो क्या दिखना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे स्लैश है या एम्प्टी रखा तो होम पेज दिखाई देगा। ठीक। अगर मैं ये स्लैश अबाउट लिख दूं तो अबाउट पेज दिखेगा। इसकी जगह अगर मैं स्लैश कॉन्टैक्ट लिख दूं तो कॉन्टैक्ट पेज, स्लैश कोर्सेस लिख दूं तो कोर्सेस पेज, स्लैश लर्न लिख दूं तो लर्न पेज एंड सो ऑन। ज्यादा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है, कितना सिंप्लीफाई कर दिया उसने। कोई स्टेट मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो बोलता है कि यहाँ पे डिफाइन कर दो अपने राउट्स। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जब कभी भी यूआरएल में स्लैश हो तो मैं वो लर्न होम पेज दिखाऊंगा। अगर स्लैश अबाउट दिखाई दे मेरे को यूआरएल में तो मैं अबाउट रेंडर करूंगा। अब अगर कॉन्टैक्ट दिखाई देगा तो मैं कॉन्टैक्ट पेज रेंडर करूंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आपका काम बस इतना है कि आप क्लियरली यहाँ पे डिफाइन कर दो। रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी इस तरह हमारी हेल्प करता है। इज दिस पार्ट क्लियर? ऑलराइट, ग्रेट। ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया। अभी हर यूजर जाके यहाँ पे ऐसे कभी नहीं लिखता कॉन्टैक्ट स्लैश दिस स्लैश दस। यूजर को बेसिकली नैव बार में ऐसे दिखना चाहिए। वो बेसिकली क्लिक करेगा अगर यूजर को कोर्सेज के रिलेटेड मालूम करना है तो यूजर कभी यहाँ जाके स्लैश कोर्सेज नहीं लिखता। राइट, क्या यूजर लिखता है ऐसे? नहीं लिखता। यूजर बेसिकली चेक करता है कि अच्छा मेरे को इवेंट्स, मेरे को ये क्लिक करना है, मेरे को लर्न क्लिक करना है एंड सो ऑन। तो इस तरह एंकर टैग भी क्रिएट करना होगा अपने को। राइट। तो एंकर टैग का रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन लिंक है। तो जैसे यहाँ पे आने के बाद वही डिव आप यहाँ पे भी लिख लो जो नैवबार हुआ करता था। राइट, यहाँ पे आप लिंक करके लिख दोगे और होम करके लिख लिया आपने। ठीक है, टू कहाँ, स्लैश। तो मैं जब ये क्लिक करूंगा तो होम पेज पे जाएगा। तो उसी तरह ए टैग हुआ करता था ना आपके HTML में, ए टैग href करके आप लिखते थे कि अगर ये कोई क्लिक कर दे तो यूआरएल चेंज करके आप क्या कर देते हो उसको, होम डॉट, राइट, जो भी यहाँ पे था उसको होम डॉट HTML ऐड कर देते हो यूआरएल को। तो सेम टाइप का सेटअप रिएक्ट में लिंक है बेसिकली। इसमें आप यूआरएल चेंज कर पाओगे। अगर अबाउट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये स्लैश अबाउट हो जाएगा। ओके, अगर कांटेक्ट करना है तो स्लैश कांटेक्ट करना है तो टेक्स्ट कांटेक्ट लिख दिया,
स्लैश कॉन्टैक्ट लिख दिया। अब जब कभी भी कोई ये कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो यूआरएल चेंज होके कॉन्टैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली कोर्सेस, कोर्सेस या फिर कैपिटल में लिख रहे हैं तो राइट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। कोर्सेस लिख दिया, लर्न करके लिख दिया एक और, ठीक है, लर्न। एक और क्या था, फी, ऑलराइट, सो नाउ सी, डन, इट्स वर्किंग। सो इसको क्लास नेम में कन्वर्ट कर देते हैं एंड इसका थोड़ा बहुत सीएसएस तो हम भी लिख सकते हैं, हम भी लिख लेते हैं देन। ओके, नैप बार का सीएसएस हम बोल देंगे कि नैप बार अगर हो तो बैकग्राउंड कलर ये दे देना, थोड़ा सा पैडिंग भी ऐड कर देना, अ, और मार्जिन 0 कर देना, बॉडी का मार्जिन 0 कर देते हैं एंड हाँ, दिस looks fine. Napa padding 10 pixel, display flex, align item center, justify content space around, थोड़ा बहुत सीएसएस ऐड कर दिया। अगर नैप बार में कोई एंकर टैग है तो उसका कलर जो है ना चेंज कर देते हैं, उसका कलर कर देते हैं रेड और ब्राउन और समथिंग, और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। अच्छा खासा नाम बार बन गया। देयर यू गो। ये नैप बार एक कंपोनेंट है, तो उसको एक फोल्डर में भी रख सकते हो ताकि इजीली आइडेंट कंपोनेंट्स करके भी एक फोल्डर बना के लेट्स से उसमें नैप बार रख लिया मैंने, तो यू नो कोड काफी क्लीन रहेगा। सो यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया नैप बार करके, ठीक है, तो लिंक कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, लेट्स से इंपोर्ट लिंक, उप्स, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी। सो ये नेम्ड इंपोर्ट है तो प्रॉपरली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नैप बार एंड यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लेना वो इंपोर्ट नैप बार फ्रॉम, कहाँ से, कंपोनेंट्स नाम के एक फोल्डर में नैप बार नाम का एक फाइल है वहां से। तो वो नैप बार यहाँ पे पिक इनपुट, ये राउट्स भी एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग सारे राउट्स रख लेंगे। फंक्शन का इस कंपोनेंट का नाम हमने रख दिया ऑल राउट्स एंड ये बेसिकली सारे राउट्स वहां पे रख लेगा। और कुछ नहीं, बेसिकली रीफैक्टर कर रहे हैं टू बी मोर प्रिसाइज। तो इसको ना हम लोग रिएक्ट उप्स सॉरी, रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से राउट्स एंड राउट कंपोनेंट निकाल सकते हैं, राइट, राउट्स एंड राउट, और ये एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑल राउट्स, और यहाँ इंपोर्ट कर लिया। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बस रीफैक्टरिंग है, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये ऑल राउट्स कंपोनेंट यहाँ पे रख देंगे ऐसे। ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि ये सारे कंपोनेंट्स, राइट, ऑल राउट्स में आपको दिखाने हैं ना, होम अबाउट एंड ऑल, तो वो बेसिकली आपको पेजेस फोल्डर में जाकर मिलेंगे। तो एक लेवल आप ऊपर गए पेजेस फोल्डर से, आपने वो निकाल लिया, तो ये पाथ चेंज करना है, नाउ इट विल वर्क।
बेसिकली यहाँ से निकाल के कोड एक सेपरेट कंपोनेंट में नैप बार क्रिएट करके एक और कंपोनेंट ऑल राउट्स करके सेपरेट कर दिया, ताकि ऐप काफी सिंपल सा अच्छे से लगे। ठीक है, जस्ट दैट। अभी ये सब तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, सो आई जस्ट रिमूव। सो या आपने एक कंप्लीट नो एप्लीकेशन बना लिया जहाँ पे यू हैव मल्टीपल पेजेस। ओके, सो अगर इसको फिल कर दूं तो इट विल बी लाइक लेट्स से app.css में we put this, app.jsx में we put this, and also यहाँ पे I think we can add let's see packages. Yes, so packages में I can add React router DOM. Let me find that packages. So I'll install this package because I want to use it. So yeah, this is installed now. Okay, बस यहाँ पे you already have this. Let's do one thing. हाँ, तो बेसिकली वहां से यहाँ मूव कर दिया, बट इट्स नॉट वर्किंग। लेट्स सी। Something's breaking, I guess. Okay, so let's see. SRC में we have this, we have this app.jsx, main.jsx में we are importing this. Then it should work, I feel. Let's reload and see. नहीं भी करेगा तो it's fine. Dependency, I added it, right? Packages में I added it. So it should work. But if it doesn't work, I cannot do anything. This is not my fault. ये basically Replit का issue है. Then अच्छा, I think I understand where the issue is. Where is it happening? हाँ, let's go. If I call index.jsx, then it should work. तो फाइल नेम का चेंज बेसिकली Replit में दे कॉल main.jsx एज index.jss, उतना ही था बस, और कुछ नहीं। ओके, तो या now you have the entire code, you can go through it. All right, so there's one package that I have installed. अगर आप package.json में भी देखोगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा react router dom added। तो ये भी मैंने ऐड किया था, that one thing that you may wanna consider. Okay,
तो टूल्स में जाने के बाद पैकेजेस में आई हैव एडेड दैट पैकेज. ओके, क्लिक ऑन पैकेजेस, ऐड वॉट एवर पैकेज दैट यू नीड. So I needed React Router DOM, so I added that package. Okay, I hope this was clear and I hope that the session was helpful. Okay. So the reason why we don't use a anchor tag in React is that in React you want uh, things to be optimized and not reloaded. Basically, abhi based on component, like path change, you are swapping components. पहले home हुआ करता था, जैसे ही path change हुआ, about component swap कर गया. तभी तो React faster है. अगर आप एंकर टैग लिखोगे तो एंटायर पेज वापस सारे रिसोर्सेस के साथ रीलोड होगा, विच इज नॉट डिजायरेबल. इसीलिए हम लोग एंकर टैग नहीं यूज करते, लिंक यूज करते हैं उसकी जगह. तो आपको भी लिंक ही यूज करना चाहिए. ओके, सो या, I have Mihir Das. Please see the chat box. I have given Replit ka link, okay, which contains all the things. Please use that. ठीक है. All right. So I will stop sharing. Thank you so much and see you. एक assignment release हुआ है, which is on the very basic topics that you have already learned. Okay. State है बस JSX and rendering part है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कल तक आप वो असाइनमेंट कंप्लीट कर दोगे. सो वी विल रिलीज फ्यू मोर ऑफ दीज असाइनमेंट्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको मैसेज भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने. तो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट. ओके, बहुत इजी से लिखा गया है वहां पे. आपको एक एक एग्जाम्पल भी दिया है नीचे. यू जस्ट हैव टू फिल इन द मिसिंग पार्ट. So just make sure that you complete it. And yeah, see you. Thank you so much.